or nothing, a big day, each and every one. A very warm welcome on SuperGrads YouTube channel. I think we all have kept you waiting for long, but there was a reason behind it. We wanted that whatever comes out, it comes out big. So a detailed analysis of IPMAT Rohtak 2023 is in front of you all. And a very warm welcome to our top best faculties of SuperGrads. Anil sir is over here, mathematics faculty, as well as academic head of SuperGrads. We also have with us Raghavan sir, who is teaching logical reasoning to you all, and Brinda ma'am directly joining from Indore. A very warm welcome, Brinda ma'am, over here. A lot of questions for you. Hello, people. Rahul. Hi. Hello, bacha log. So something which is very crucial. You are seeing your screens, and let's start with level of difficulty, not wasting any time. सबसे पहले overall difficulty की अगर बात की जाए, so Anil sir, I would like to ask you कि overall level of difficulty कैसी थी? How was it compared to last year's? Yeah, last year के comparison राहुल हम लोगों ने analysis लिया था and सारे ही students का एक feedback आया कि last year के respect में भी काफी easy था ये paper overall. And हमारे जो SuperGrads के जो mock थे उसमें जो easiest mock था उससे भी आसान आया था, you know. So it was comparatively easy as compared to last year. So great point being made कि paper was comparatively very easy. और राघवेंद्र सर, according to you, logical reasoning किस तरीके से इस बार देख रहे हैं आप? अगेन लॉजिकल रीजनिंग काफी इजी आया है. लास्ट ईयर से भी बच्चे बता रहे हैं कि काफी इजी आया है, और जो इस बार बच्चों ने अटेम्प्ट किया है मोस्टली बहुत अच्छा हाई स्कोर उनका आने वाला है. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली जो स्टूडेंट्स हैं 35 प्लस ही किए हैं, और एक मेजॉरिटी स्टूडेंट का ऐसा भी चंक है जिसने 39-40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, हो सकता है वो गलत हो. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन के साथ में ये प्रॉब्लम था. एक्चुअली क्या है वो चीज आगे अपन डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली बच्चों ने एक अच्छा स्कोर किया है. 38, 39 बहुत बड़े क्राउड ने अटेम्प्ट किया हुआ है. Great point. Okay, Brinda ma'am, how do you see this paper? Well, according to the feedback that the students gave me, most of the students found the paper easy, but then they said compared to the other subjects, the level was better. But if they just if I just asked them about the English section, they said it was fine, it was doable, and most of the students have attempted 35 plus questions, and they believe they will have at least 90% accuracy. But you're mentioning one point on a PPT. I can just read it. English was easy but trickier than LR and QA. Why was that? Yeah, mentioned? that's what. Okay, they said that on the whole, English alone, if I just talk about English alone, it was okay. But then if they compare it with the level of the other two papers, they found English was slightly trickier than the other papers. So they said that's what they said. I mean, trickier than the other two, but easy. But easy, okay. Yeah, that's right. All right, so good attempts. Let's have a conversation on this particular part also with Anil sir. First of all, what do you think would be the average number of good attempts? So when we say good attempts, it means, student is in a very safe zone. So कितना होगा और क्यों? Why are you mentioning this number on the screen, sir? Yeah, राहुल, सेफ की हम जब बात करते हैं, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो ऐसा एक अटेम्प्ट कि अगर हमारा 90% एक्यूरेसी होता है, लाइक 10% हमारे रॉन्ग्स भी हो जाते हैं, तो भी हमारे मार्क्स ऐसे आए कि हम लोग कट ऑफ के 20-25 नंबर ऊपर ही रहें. तो दैट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज 105 to 110, 110 आई एम सेइंग. तो ये अगर रहेगा तो सेफ साइड पर रहेगा बच्चा, कट ऑफ क्लियर करने के उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे. दैट इज व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम स्टूडेंट्स. And mathematics, according to you, mathematics, yeah, again 35 questions for even an average students should be attemptable अगर उसकी practice sorry for interrupting in between. कुछ questions practice sheets से बिल्कुल as it is SuperGrads की. Yes. Actually. So 35 to 38, even 40 for a good person who's good in maths, 40 even. So that is a good attempt for the student. All right. Raghavan sir, आपका take क्या है इस पे? यहाँ पर जैसे कि अनिल सर ने अभी कहा है, आपने सती सर का इनपुट लिया है, एग्जैक्टली सेम विद LR. निखिल सर ने वन शॉट जो लिए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके एज इट इज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है. तो हमारी पूरी LR टीम बहुत तन्मयता के साथ लगी हुई है, और बच्चों का एक बड़ा रोल है इसमें कि भाई बच्चे उस पूरी चीज को फॉलो करते हैं और अच्छे अटेम्प्ट लेके आए. जनरली आज इतना अच्छा दिन है कि भाई
मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, 39 38 अटेम्प्ट करे हैं। तो ये सुन के पूरी बोलते हैं ना, पूरी साल भर की थकान मिट जाती है कि यार बच्चों ने अच्छा स्कोर करने की कोशिश करी है। और कहीं ना कहीं एक गुड अटेम्प्ट जो कहा जाए क्वेश्चंस का 34 35 36 अगर किसी बच्चे ने किया हुआ है अटेम्प्ट, तो एक सेफ अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, है ना। और जनरली 35 प्लस ही किए हैं, जितना बच्चों से मेरी बात हुई है, कोई ऐसा नहीं निकला कि जिसने 35 से नीचे कहा है। ऑलमोस्ट 36 37 38 के अराउंड डेटा है। कुछ बच्चों का जरूर है कि उसने पूरा पेपर 40 आउट ऑफ 40 मारा है, सो दैट्स ग्रेट। English, according to you, ma'am, you clearly mentioned a point that it was a bit trickier, so I can read it as 35 to 38 over there also. What's your take over there? Actually, Rahul, the students always find only the vocab section more challenging than the other sections in the entire verbal ability section. But then one thing that I got to know from a majority, I'd say all of the students I spoke to, that they found a lot of questions on vocab. I mean, the same questions that were done in the class. And in fact, for grammar, some of them said that the rules that were focused more during the sessions were there, and because of which they were able to mark the answers right away. They didn't have to, think much. They looked at the question, they understood the concept, and they marked the answer. So most of them have attempted at least 35 to 37 to 38 questions, just one or two odd questions, which always, I mean, there is the students are not able to answer, generally based on vocab again. But then most of the students have attempted I think at a lot of least. students are glued to the screen. I can see them. A humble request to each and every one. You can put your questions right away in the chat section. I'm going to put those questions right away to your favorite faculties over here. All right, next. After good attempts, some highlights, which have been mentioned over here. Anil sir, if you can throw some light on the highlights. सो जैसा कि हम लोगों ने लाइक आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताया था कि लास्ट मिनट टिप्स में वी हैड अ पॉसिबिलिटी कि यार अगर सेक्शनल टाइम लिमिट आ गया तो क्या करेंगे और नहीं आया तो क्या करेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द चांस वाज इन फेवर कि नहीं आएगा बिकॉज लास्ट 4 years में नहीं हुआ है, राइट। तो दे डिड नॉट ब्रेक द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था। इजीली बच्चे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में इजीली स्विच कर पा रहे थे, और जो भी उनका मॉक का जो स्ट्रैटेजी था इट रियली वर्कड वेल, राइट। सो दैट वाज वन थिंग। एंड उसके बाद कोई स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं था जैसे कि इंदौर में होता है, रोहतक में ऐसा कोई स्क्रीन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं था, राइट। और एक स्क्रैच पेपर अवेलेबल कराया था हर बच्चे को, और अगर नीड पड़ती है तो सेकंड थर्ड और ले सकते थे स्टूडेंट, राइट। और ट्रांसपेरेंट पेन आप अलाउ कर सकते थे, आप ले जा सकते थे खुद का घर से, बट इट शुड हैव बीन ट्रांसपेरेंट। और नहीं ले गए हो पेन तो वो रेडी थे प्रोवाइड करने के लिए, राइट। एंड जो अटेम्प्ट किया है कई सारे बच्चों ने, 2 घंटे भी उनको नहीं लगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इससे भी पता चलती है कि यार स्टूडेंट डिड नॉट टेक द होल 2 hours, इवन लाइक कई बच्चों का 1.5 घंटे में, कई बच्चों का 1 hour 45 minutes में, 5 minutes पहले खत्म हो गया था। ऐसा लास्ट ईयर सुनने में नहीं आया था। सो दैट अगेन टॉक्स अबाउट कि यार इजी था पेपर। तो ये भी I'll take one question from Kanan over here, Anil sir, क्योंकि आप easy paper की बात कर रहे हो, तो Kanan is asking you, sir, why do you think Rohtak made this paper so easy this year? If we can have some answer for this, or really, I don't know, but it was seemingly attemptable, right? People attempted 120 or 110, 115, right? But there must be some trick, right? Because we have not seen actual the question, right? Where I can see some difference, which I'll talk about in later half. CR question, critical reasoning question were increased, and comparative quantitative question were introduced. There were few things, right? As ma'am said, English on the trickier side. So even if those questions get wrong, so it's seemingly easy, I'm saying, but we have to see what would the cutoffs at the end. All right. So cutoffs, we already are putting one slide at the end. You can ask other questions. But a lot of students are asking questions to cutoffs. We'll be talking about cutoffs in the due time. Now let's ask section-wise. Let us look into the section-wise highlights as well. As for the as for the feedback that we received from a lot of students, we got to know quantitative comparative questions were there, right? So which value would be higher? So that kind of question were asked. It was introduced first time. 4 to 5 questions were there, and data interpretation, not even single question was asked this time, and hardly any question from algebra, which were there 3 to 4 questions last year, but it was almost absent this time. PNC probability, mensuration, they had a good weightage as compared to last year. They're consistent topics, you can say.
right? So almost they made 8 to 10 questions, right? 8 questions I can say, PNC, probability, and mensuration, right? So that was the main highlight in the section. Okay. So clearly mentioned by Anil sir. Now let's go directly to Indore from Bhopal. Let me ask this question to Brinda ma'am. What was the highlight of verbal ability section this year? There were certain things that were pretty standard. So Rohtak has released only 2 official papers till date, and they have been very consistent in the organization of the paper. And this time it was no different. So the number of questions, the way they were presented, everything as per the feedback that I've received from the students was same. That was point number 1. They generally do not ask questions. I mean, they do not give fillers based questions on vocab. They give you direct questions on vocab. It was again the same. That was another highlight. And one very important thing, the thing that was different this time in the paper, or additional this time in the paper, was that instead of asking the regular parajumble based questions, so there were 4 questions apparently based on parajumbles. 2 were regular standard open parajumble based questions with multiple answer choices that were provided for 2 of them, and 2 were different from the others. So they had given 4 statements. 3 of them could have been organized in a paragraph, and 1 was odd. So Or they out, had yeah. to pick up, yes, the odd man out. So this was different this year in the paper. All right. So that was the highlight. राघवेंद्र सर, आपका कैसा टेक है इस पे? क्या हाइलाइट्स है इस बार एंड हाउ वाज इट डिफरेंट? यहाँ एलआर सेक्शन में जैसा कि पिछले 4 साल से हो रहा था कि विजुअल रीजनिंग भी पूछ रहा था वो, इस बार विजुअल रीजनिंग का ऑलमोस्ट उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, और क्रिटिकल के क्वेश्चन जनरली 4 to 5 आते थे, इस बार उन्होंने थोड़ा इंक्रीज करा है उसमें, एंड दैट इज बिग चेंज. क्रिटिकल रीजनिंग एनपेट एग्जाम जो अभी हुआ था उसमें भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं, और रोहतक जो अभी आज हुआ है उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स. सो दिस इज बिग. मैं आपको सॉरी इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में. एक हम लोग अभी इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे, तो एक चीज ये भी सामने आई कि इस बार का जो आईपीमैट रोहतक आया है, यू नो, एक्सीलेंटली इट हैज बिकम इजियर देन एनपैट आल्सो. लाइक आईपीमैट रोहतक इतना इजी वैसे नहीं रहता है, राइट? सो दैट वाज आल्सो अ पॉइंट ऑफ हाईलाइट. एग्जैक्टली. थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन था कि एनपेट कंडक्ट हो रहा था, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग एलआर सेक्शन में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया था, तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद यार यहाँ पर रोहतक में भी वो बढ़ा दे. तो ये चीज हम लोगों ने क्लासेस में भी कही थी कि बच्चों को थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना. इवन क्लासेस भी उसके अराउंड बढ़ा दी थी लास्ट क्लास में एनपेट को देखते हुए, और वही एक एक्सपेक्टेड जो था, एक्सपेक्टेशन था, वो चीज हुआ भी कि क्रिटिकल रीजनिंग बढ़ा भी. Okay. Now let's move to quantitative aptitude sectional breakup, because you know it's very important for each and everyone. क्योंकि अगले साल अगर आप IPMAT रोहतक लिख रहे हैं, then you should have this list in front of you. Anil sir, if you can throw some light on this. Yeah, as students, as you can say, आप लोग तो पेपर देकर ही आए हो, right? Time in work for 4 questions, काफी ज्यादा वेटेज था इस बार. टाइम स्पीड डिस्टेंस भी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, right? प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर, एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन थे 2-3, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? 2-3 क्वेश्चन, मिक्सचर्स, एलिगेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी का 1 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, प्रोग्रेशन का 1 था, मेंसुरेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे. बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि आपको बॉक्स ए दिया है, बॉक्स बी दिया है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, और फिर एक वैल्यू आ रही है बॉक्स ए से ए, और वैल्यू आ रही है बॉक्स बी से बी. तो ए और बी की कुछ वैल्यू आएगी, दोनों में से बड़ा कौन है? तो इसको मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस. ऐसे 4-5 क्वेश्चन आए थे, हालांकि वो इजी थे, यू नो, तो उसमें ये नयापन था स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये बनने थे. तो दैट वाज मेंसुरेशन के, उसमें उसके अंदर भी मेंसुरेशन टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आए थे. नंबर्स के 2 क्वेश्चन, रेशियो के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का 1 क्वेश्चन. सो दिस वाज द ब्रेकअप ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन. All right, let's move to LR now. Raghavendra sir, I think this is the list being provided by you. If you can throw some light on this particular list as well. Yes, exactly. यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर का भी कंपैरिजन करा जाए कि लास्ट ईयर जो टॉपिक्स पूछे गए थे ऑलमोस्ट वो सभी टॉपिक रिपीट हुए हैं, है ना. हाँ, ये था कि कुछ टॉपिक उन्होंने नहीं पूछे, जैसे लास्ट ईयर क्यूब एंड डाइसेस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार उन्होंने नहीं पूछे. लास्ट ईयर जो विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो इस बार नहीं पूछे गए. तो जो आने वाले 2024 में आईपीएम रोहतक लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस डेटा का ध्यान रखना चाहिए. इवन पिछले 4 ईयर का जो डेटा है कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान रखना चाहिए, और एक ट्रेंड बना हुआ है उनका कि कंसिस्टेंटली वो जो टॉपिक पूछ रहे हैं वो हमेशा पूछ ही रहे हैं, और उनका फिक्स है कि 2 to 3 सेट्स डेटा अरेंजमेंट के पूछ रहे हैं तो वो पूछते ही हैं. सो जो बच्चे आईपीएम 2024 को
कोर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक कंसीडर करने हैं और इनके अराउंड थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है। और जितना ज्यादा हम अपने आप को इसमें प्रो बना लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अदर सेक्शन में टाइम देना ज्यादा सही हो पाएगा, राइट? राइट, ठीक है। Vrinda ma'am, your take. This is the sectional breakup which being provided by you. Yeah, right, Rahul. Thanks. So, like I said, they have been pretty consistent with the organization of the paper. So they give direct questions on vocab. So they give synonyms and antonyms. The number may vary. So they may have given 3 last time. They may have given 4 this time. They may have changed the number of questions, but they have been pretty consistent with the type of question. So questions were direct. Maybe 1 or 2 fill-up based questions were there, but mostly the vocab was around direct questions based on synonyms, antonyms, and idioms and phrases. Then grammar, they increased the number of questions. Last time there weren't as many questions, and this time the questions. But then the consistent part of the paper is that they ask questions around connectors, that is conjunctions. They ask questions around subject-verb agreement or conditional sentences. But so broadly speaking, the questions are around parts of speech and parallel structure, modifier, and sometimes around other topics such as voice or narration, but majorly around these topics that have been discussed. And the rest is pretty common. So parajumbles, they do give a question or two on paracompletion. So I guess that's about it. All right. These are the topics that are generally asked apart from RC. So I'll request to all the students, you can pause this video and go back as well whenever you see the recorded version of this and take the screenshots, because it's going to be really, really helpful for you in days to come when you're evaluating the things. So in case, God forbid, if you're writing this exam next year, so it's going to be really very crucial stuff for each and every one of you. Now, moving on, this is a seat breakup. So 180 seats. This time, Rohtak increases the seats by 20 and it is 180 now. So general का breakup ये आ रहा है 64 के आसपास बैठ रहा है, OBC 49, EWS 18, SC 27, ST 13 and PWD 9. So as per the Government of India guidelines, this is the breakup of seats. After this, something which is very, very crucial over here, and पहले मैं past academics की बात कर देता हूँ, फिर I'll be throwing some light on the interviews part also. Everybody told, and today हम morning में आज हम center के बाहर जाकर हर student से बात कर रहे थे, हर student के मुंह से एक ही चीज थी, सर पेपर बहुत आसान था. So when the paper is very easy, एक उसका different impact होता है. Cutoffs are very high. Second, जो बाकी elements हैं उनका role बहुत crucial हो जाता है. तो यहाँ पर 2 elements और हैं. एक है पास academics. अनिल सर, if you can throw some light कि वो किस तरीके से इस बार impact create करने वाला है. देखिए, अगर आप कट ऑफ मीट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स जो भी कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में आते हैं वो अगर आप मीट कर लेते हैं तो ये तो पक्का हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, राइट? बट फाइनल सिलेक्शन, आपका एडमिशन उस पर डिपेंड करता है कि आपका 10-12 के क्या मार्क्स थे और आपका इंटरव्यू आप कैसा कंडक्ट करते हो, कैसा आप देते हो, कितना अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, बिकॉज हर एक का वेटेज है, राइट? 10 बोर्ड के 12 बोर्ड के मार्क्स का 20% वेटेज है, राइट? और रिटन एग्जाम के अलग वेटेज है, इंटरव्यू के अलग वेटेज है. सो solely on the basis of written marks we cannot expect कि हमारा फाइनल एडमिशन हो जाएगा. 10-12 will matter a lot, है ना? तो जितने ज्यादा अच्छे हैं, सी बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके मार्क्स 10-12 में बहुत अच्छे हैं तो स्लाइटली लोअर मार्क्स अगर ला रहे हो आप, कट ऑफ से ऊपर हो पर थोड़े कम है आपके, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ 320 है और आप 340 लेकर आ रहे हो, राइट? और जिसका 10-12 में कम मार्क्स है तो उसको शायद 380, 370 ऐसे कुछ मार्क्स लाने पड़ेंगे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. So if you have an advantage if you got more marks in 10th and 12th board. And certainly interviews are also going to play a very crucial role because हमारे पास students आके question पूछते हैं, if we make it then how much we need to score, if we mar it then how much we need to score. So there is no chance of marring it this time. You have to make it because if you're not making this time, क्योंकि इस बार अगर पेपर आसान था तो मार्क्स भी बहुत क्लोज होने वाले हैं individuals के, they'll be called and certainly you have to perform well in the interviews. So a direct message coming from this exam analysis session. Now moving on, expected cutoffs, the most important slide of this particular session, and most of the students are I think are glued over here. Anil sir, 330 to 340 बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं. What is the reason behind it? या बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कट ऑफ क्या जाएगा जनरल कैटेगरी या हमारी अलग अलग कैटेगरीज में. सो लास्ट ईयर इट वाज 306 फॉर जनरल
राइट। और हम लोगों ने सरप्राइजिंगली हमने नहीं सोचा इतना शूट अप हो जाएगा लास्ट टाइम, बिकॉज हम लोगों ने एनालिसिस लिया था बट स्टूडेंट से बात करके लगा 280 तक कुछ जाएगा, 260 to 70 we expected, but it shot up to 306 and it was all surprise for all of us स्टूडेंट के। तो हम लोग भी सरप्राइज थे कि 306 कैसे हो गया। तो ऑब्वियसली द कंपटीशन, द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, उनकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो उस लेवल तक जा रही है। यू नो पीपल इज प्रिपेयरिंग फॉर इंदौर काइंड ऑफ एग्जाम, जो कैट का 19-20 ही हो जाता है एक तरह से। जिस लेवल की बच्चे तैयारी करते हैं इंदौर की, वो कैट का 19-20 ही होता है, तो रोहतक तो उनको इजी लगेगी। तो ये चीज इस साल भी होगी, राइट, बिकॉज बच्चे दिन रात लगकर उस टाइप की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर कंपैरेटिवली इजी है, ट्रिकी भी है, कुछ सम एक्सटेंट ट्रिकी भी है, कुछ पार्ट एलआर में कुछ पार्ट हो सकते हैं, मैथ्स में एक पार्ट हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है। तो समवेयर अराउंड 306 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं जनरल कैटेगरी का। तो व्हाट वी थिंक इज 330 340 की कुछ रेंज में, उसके आसपास ही कट ऑफ होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी है तो 250 260 कुछ जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 280 290 कुछ होना चाहिए। एससी के लिए 160 180 का रेंज होता है, हम लोग जो प्लान करके रख रहे हैं, प्लान इन दिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एसटी शुड बी 80 to 100 मार्क्स, राइट। एंड पीडब्ल्यूडी अगर कोई स्टूडेंट है 200 220 should be a good marks to achieve and get shortlisted for the interview. That is Okay, what just would yeah. like to ask something. I mean, the other categories we have taken the base as last year, so it may vary a bit, but general category Yeah. हमारे हिसाब से 10% कम ज्यादा होना चाहिए, but it should remain static as 330 to 340 from here. The last round. Now, last round is a very interesting one, and I would like to ask this particular question from each and every one of you. आज आपने जब एनालिसिस करी तो स्टूडेंट से खूब सारी बातचीत हुई। मॉर्निंग में व्हेन वी वर टेकिंग दिस लाइव सेशन, मुझे पता है जब निखिल सर एज वेल एज आकाश सर वर देयर, स्टूडेंट्स के जो हंसते हुए चेहरे बाहर आ रहे थे, एंड रियली मेकिंग ऑल ऑफ अस फील सो प्राउड। इफ यू कैन थ्रो सम हाईलाइट ऑन दैट पार्ट कि आपको कैसा लगा, क्या स्टूडेंट्स फीडबैक थे सुपर ग्रेड्स के अराउंड, व्हाट ऑल दे वर सेइंग, एंड बिकॉज ये एक महीने की, एक साल की जो मेहनत है वो बाहर आती है, 2 साल की जो मेहनत है वो बाहर आती है। सो सबसे पहले वन बाय वन, पहले मैं इंदौर में जाता हूँ, फिर अपन भोपाल पे भी आते हैं। सो अनिल सर, वेट फॉर योर टर्न। Brinda ma'am, yes. Rahul, I spoke to a lot of students. I mean, I guess पेपर खत्म हुआ और मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए एक के बाद एक। पहले तो बच्चे हंसना बंद नहीं कर रहे थे। एक बच्चे ने तो मुझे ये भी बोला, कहता मैम एक वर्ड था, आपने इलेजिबल वर्ड था, आपने एग्जाम्पल दिया था जैसे डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आती, कहते मुझे वो एग्जाम्पल याद था, वो वर्ड था, आई स्माइल्ड व्हेन आई लुक एट द वर्ड, ऐसे ये तो मुझे आता है। एंड देन इस तरह से, मतलब दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। उसके बाद जब दूसरे बच्चे का कॉल आया, कहता मैम ये वाला रूल ना आपने कई बार बोला था कि ये इम्पोर्टेंट रूल है, वही उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, आई स्माइल्ड, ऐसे भी आंसर तो मुझे आता है। तो इस तरह से जब बच्चे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैडम, आप जब वो लोग एग्जाम दे रहे थे आपको हिचकी आ रही थी क्या? Alright. मतलब बच्चों की स्माइल, बच्चों की खुशी, इट सेज अ लॉट। वो क्या करेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन दे वर सैटिस्फाइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। So this is the smile which is needed after every exam, जो एक फैकल्टी है उसकी स्माइल कह रही है यहाँ पे। राघवेंद्र सर भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछते हैं। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था आज मॉर्निंग से आफ्टर 11 o'clock? लगभग 11:15 बजे की बात है। तो होता क्या है कि साल भर अपन पढ़ाते हैं बच्चों को, और भाई बच्चों ने भी मेहनत करी होती है, वो सब चीज एक अपनी जगह होती है। और 11 बजने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम था, और मैं अचानक से बस भगवान को याद करने लगा। मैंने कहा अब ये लास्ट उनके 15-20 मिनट बचे हुए हैं, जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कराए, ईश्वर उनको सही से, उनको बोलते हैं ना, नैया पार लगा देना। और जो मेहनत करी है उनकी मेहनत को रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देना, ये मैं उनसे प्रे कर रहा था भगवान से। और जनरली जो निखिल सर और आकाश सर वहां से सेंटर के बाहर से बच्चों का इंटरव्यू कर रहे थे, मैं घर पे यूट्यूब लाइव देख रहा था और काफी फील गुड कर रहा था कि जो अपन एक एक्सपेक्टेड, बच्चों को डांटते रहते थे साल भर की, पढ़ ले एकदम मक्कारी कर रहा है टाइप, है ना, लेकिन मन में अपन को भी पता होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी डांटना जरूरी होता है कि ताकि वो ढीले ना पड़ जाए अपनी प्रिपरेशन में। और एक चीज और यहाँ पे एडिशनल में आने वाले जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। जनरली होता क्या है, आईपीएम रोहतक और जिपमेट 2 ऐसे एग्जाम है जिनको बच्चे थोड़ा लाइटली लेते हैं। आईपीएम इंदौर ऑब्वियस है, एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसको टारगेट करना चाहिए, बट एज अ प्लान बी हमारी प्रिपरेशन जिपमेट और रोहतक के लिए भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए एज अ प्लान बी।
प्लान ए हमारा IIM इंदौर ही होना चाहिए, नो डाउट। बट हम बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट साल भर लगे रहते हैं IIM इंदौर की प्रिपरेशन के लिए, और वो रोहतक और जिपमेट की प्रिपरेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और एक टाइम के बाद उन्हें फील होता है कि यार हम काफी गलत कर रहे हैं, और लास्ट में फिर वो जगते हैं और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे LR उनको डीप में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। मेरा ये कहना है कि भले आप IIM इंदौर टारगेट कर रहे हैं, हमें LR भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पढ़ के रखना है, क्योंकि IIM इंदौर में भी LR का एक सेट आता है, और रोहतक और जिपमेट में तो मेजर पार्ट ये है ही। Right. Okay. Oh, now final words from you, the concluding words from you, Anil sir. How was the feeling since morning today? Yeah, it was fantastic, Rahul. The students के like calls और chats, right? Inbox पूरा fill हो गया था, and students को तो questions भी याद थे, right? So they actually shared the questions, right? So बहुत ही मजा आया, and they all were happy and gaga about the entire event, right? They did not expect इतना easy आ जाएगा, right? काफी डरे सहमे से बच्चे होते ही हैं जब पहली बार IPMAT, 3 IPMAT में से पहला IPMAT था, तो थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा होती है, बट जब पेपर देकर आए हैं नो, तो स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी अबाउट इट। सो मेरा ये मानना है कि भाई रोहतक या तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको अंडर एस्टिमेट करके चल रहा है ना, कि यार ये बच्चे यही दे दो तो निकाल लें तो बहुत है, बट स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है रोहतक ने, है ना। तो कट ऑफ सर्टेनली बढ़ने के अब वो दिन आ गए, राइट। रोहतक का 50, लास्ट 2 साल पहले 50% कट ऑफ था, ऑलमोस्ट 50%, बिकॉज 480 मार्क्स का पेपर हमेशा से रहा है, और 256 कट ऑफ था 19 में, 265 था 21 में, तो दैट टॉक्स अबाउट 52%, 53% के आसपास था कट ऑफ लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट इट बिकम्स 62.5, 65% मान लो आप कट ऑफ हो गया, 65%, और इस बार शायद 75% 75 टच होने का लग रहा है, 360 या जो भी है, तो 330, 340, तो वो धीरे धीरे परसेंटेज कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी बहुत मेहनत कर रही है और कट ऑफ को आगे लेके जा रही है। अगर पेपर ऐसा इजी आएगा तो कट ऑफ और परसेंटेज बढ़ने के लिए रेडी रहे। यहाँ पे IIM रोहतक वाले ऑफिशियल्स जो भी हैं, IIM रोहतक ऑफिशियल्स, उनसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि पेपर को थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया जाए, क्योंकि इससे होता क्या है, जो ईयर लॉन्ग स्टूडेंट है या जो मेहनत जनरली लंबे टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं, उनके साथ थोड़ा फेयर नहीं हो पाता है ना, या जो मेहनत कर रहा है बच्चा और जो मेहनत नहीं भी कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस बचता नहीं है। तो एक पेपर कोई भी हो, थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई जो मेहनत कर रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत करी हुई है, तो पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया जाए, नॉट दैट मच डिफिकल्टी बच्चे को डिमोटिवेशन हो, बट हाँ पेपर थोड़ा लेवल का होना चाहिए। All right, I think एक बहुत ही लंबा कन्वर्सेशन, लेकिन एक बहुत ही important conversation. And finally, I would like to say it was a dress rehearsal for each and every one of you today, because you know I am Indore is going to be on 16th of June. एक important message यहाँ से, I think बहुत सारे students आज मुस्कुराकर बाहर आए हैं क्योंकि पेपर easy था. But yes, competition still persists. And even if you think that you fall short, you still, try and try again and again. Jump up, brush up your knees, and run again, because I'm Indore is just 1 month. It's going to happen on 16th of June. This was all from my side. Thank you to all the 3 faculties of SuperGrads for joining us live over here. Thanks a lot, each and everyone, for watching us. Bye guys. Bye-bye. Take care guys. And all the best for future exams.